students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, now we are going to start our next chapter, which is Introduction to Adobe Animate CC. ये एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है. ये कैसे काम करता है इसको हम पढ़कर जान लेते हैं. Things to learn starting Adobe Animate CC, various tools in Adobe Animate CC, components of Adobe Animate CC window, some common commands. Now Adi, Robo, I want to make an animation by displaying a series of pictures of frames. My teacher said to make animation projects using pictures, videos, sound and other effects. अब आदि के टीचर ने उसको एक प्रोजेक्ट दिया है बनाने को, तो वो किसके पास पहुंच गया है? रोबो के पास पहुंच गया है. Robo, then what's the problem, Adi? Adi, but Robo, I don't know how to use the animation software. Please help me. तो आइए जानते हैं कि रोबो आदि की कैसे हेल्प करता है उसके प्रोजेक्ट बनाने में. Adobe Animate, formerly Adobe Flash Professional, Micromedia Flash and Future Splash Animator is multimedia authoring and computer animation program developed by Adobe Inc. तो Adobe Animate जो है, जिसका पहला नाम Adobe Flash हुआ करता था, अब ये इसका अपडेटेड वर्जन है जिसको डेवलप किया गया था by Adobe Inc. Now it is multimedia graphics software that is used to create interactive animated vector graphics for the web as well as for desktop presentations, movies, games, etc. तो इसको बनाने के पीछे पर्पस ये था कि इसके थ्रू आप बहुत सारी अपनी जो मूवीज़ हैं, गेम्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वो क्रिएट कर सकें. Using this software, one can combine images, audio, video and create animation. The animation and graphics created in Animate CC can be scaled to any size without compromising on the quality. तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप इसमें इमेजेस, ऑडियो, एनिमेशन को कंबाइन कर सकते हैं, अपना एक खुद का वीडियो बना सकते हैं. ये जो एनिमेशन और ग्राफिक्स है जिनको एनिमेट सीसी में क्रिएट किया जाता है, इनको आप किसी भी साइज़ तक स्केल कर सकते हैं. Now you should know Flash originated with the application the Smart Sketch developed by Jonathan Gay. Future Wave added vector drawing capabilities and released Future Splash. Micromedia acquired Future Splash and released Flash combining Future and Splash. Micromedia was purchased by the software giant Adobe in 2005 and is therefore currently being developed and distributed by it. Since February 8, 2016, Flash Professional CC has been renamed Adobe Animate CC. तो इसकी हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है कि फ्लैश जो था ये ओरिजिनेट था पहले विद द एप्लीकेशन स्मार्ट स्केच. इसको जोनाथन गे ने क्या किया था, डेवलप किया था. इसके बाद इसको कंबाइन किया गया फ्यूचर स्प्लैश के साथ. धीरे धीरे इसको और अपडेट किया गया और फरवरी 8, 2016 से ये रीनेम किया गया एडोब एनिमेट सीसी के नाम से. अब तक इसे इसी नाम से ही जाना जाता रहा है. नाउ स्टार्टिंग Adobe Animate CC. अब आप इसकी हिस्ट्री जान चुके हो, ठीक है. अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम इसमें अच्छे से वर्क कर सकें. बिफोर स्टार्टिंग Animate CC, you need to install it on your computer. To start the Adobe Animate CC, use the steps given on next page. तो आपके कंप्यूटर में ये होना बहुत ज़रूरी है. तो इसका सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसी के बाद इसे ओपन करेंगे. तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम जान लेते हैं. स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार. द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स. स्टेप 2, क्लिक ऑन द Adobe Animate CC 2018 program. The welcome screen of Adobe Animate CC 2018 will open. Step 3, in the welcome screen under create new option, click on ActionScript 3.0. ActionScript 3.0 target the Flash player. It is the latest version of Animate scripting language. A blank document opens in the Animate with the specified dimensions. ठीक है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ठीक है, जो आपको टास्क बार पर नजर आएगा. आपके सामने स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा. इसमें आपको क्लिक करना है Adobe Animate CC को, जो आपको सबसे ऊपर नजर आएगा. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप वेलकम स्क्रीन पे देखेंगे अंडर क्रिएट न्यू ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा ActionScript 3.0. ये लेटेस्ट वर्जन माना जाता है एनिमेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का. और आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी विद स्पेसिफाइड डायमेंशंस. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ Adobe Animate CC विंडो.
The animate program window has a number of components with which you must familiarize yourself before working on graphics and movies. सबसे पहला है मेन्यू बार. द मेन्यू बार एट द टॉप ऑफ द एनिमेट एप्लीकेशन विंडो डिस्प्लेज मेन्यूज विद कमांड्स फॉर वर्किंग विद एनिमेट ऑब्जेक्ट्स. तो मेन्यू बार जो है ये सबसे ऊपर आपको नज़र आता है, जिसमें आपकी जो एनिमेट एप्लीकेशंस विंडो है वो डिस्प्ले करती है मेन्यूज़ को विद कमांड्स, जिससे आप एनिमेट ऑब्जेक्ट पे वर्क कर सकते हो. अगला है स्टेज. The stage is your workplace. Any graphics placed in this area will be visible and accessible to the user for working on it. Default width and height of the stage is 550 into 400 pixels. Stage जो होता है ये आपका workplace होता है, जहाँ पे आपका object जो है वो visible होता है. Next is the timeline. The timeline is used to set the sequencing and timings of various graphics and other elements of a movie to create animation. Timeline में आपके sequence set किए जाते हैं, ठीक है, उनकी timing set की जाती है कि कोई भी object कितने time के लिए screen पे आएगा, कितने time के बाद वो जाएगा. The major components of the timeline are layers, frame and the playhead. It has a ruler-like strip called frames and a field labeled as layer 1. Layers are like the transparent sheets stacked one over another, each containing different images. Frames are small slices of time that are combined and played back in a sequence to create animation. टाइमलाइंस जो होती है आपकी लेयर्स, फ्रेम एंड प्ले हेड के साथ आती हैं, ठीक है. इनके डिफरेंट आपको वर्क जो है देखने को मिल जाते हैं. जैसे लेयर्स जो होती हैं ये आपके ट्रांसपेरेंट शीट की तरह होती हैं, जिसमें आपके डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो लगी हुई होती हैं. फ्रेम जो होते हैं ये स्मॉल स्लाइसेस होती हैं, ठीक है. नाउ टूल्स पैनल. द टूल्स पैनल ऑफर्स various tools that allows us to draw, paint, select and modify graphics on the stage. Tools panel contain a number of tools. टूल पैनल में आपके डिफरेंट टूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी कुछ भी पेंटिंग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं और उनको सेलेक्ट करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं. Some tools contain some modifiers for the selected tool. The modifiers are used to change the properties of the selected tool. Any shape we draw consists of two properties, the stroke line color and fill color. Fill and strokes are treated as separate objects. Strokes color is the color of the lines you draw or the outlines of the object. Fill color is the color which you fill inside the shape. कुछ टूल्स जो होते हैं ये आपके मॉडिफायर्स कहलाते हैं, ठीक है. तो जो आपके ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इसमें आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं. शेप जो होती हैं ये आपके दो प्रॉपर्टीज़ के साथ आती हैं. एक होता है आपका स्ट्रोक लाइन कलर एंड दूसरा होता है आपका फिल कलर. नाउ प्रॉपर्टीज पैनल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. It is generally appears at the bottom of the window. It provides options for changing the commonly used properties of the currently selected tool in the tools panel or the selected graphic on the stage. तो आपका जो प्रॉपर्टी पैनल होता है इसको हम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर भी कहते हैं, ठीक है. और जनरली आपके विंडो के बॉटम में होता है. नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा. Library panel. The library panel contains the objects that are either created or imported. These objects in the library panel can either be reused in the project or exported to another project. तो library panel जो होता है इसमें आपके ऐसे objects रखे हुए होते हैं जिनको आप create करना चाहते हो या create करने वाले होते हो या फिर आपने import किया हुआ होता है. Various tools in Adobe Animate CC. Let us learn to use some important tools in the tools panel to draw the objects on the stage that we can later animate. Selection tool. The selection tool lets us select objects by clicking on an object or by enclosing the object within a rectangular selection mark. Let us discuss some of the ways of selecting different portions of an object. Step 1. Click on the selection tool in the tools panel. Step 2. To select a stroke outline, click on the shape outline. Step 3. To select a fill, click on the color fill inside a shape. Step 4. To select a shape as well as its outline, double click inside the shape. Step 5. To select one complete object fill plus outline or more than one object, just select the selection tool and drag the mouse to draw a selection border around these objects. To select a partial object, follow the steps given below. तो इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम
देख लेते हैं कि कैसे आप सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं। सिलेक्शन टूल जो होता है ये आपके ऑब्जेक्ट्स को आपके स्क्रीन पे सेलेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये इनको इंक्लोज करता है एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्क से। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे जो कि आपको टूल्स पैनल में नजर आ जाएगा। देन आप सेलेक्ट करेंगे स्ट्रोक आउटलाइन और उसके लिए आप क्लिक करेंगे शेप आउटलाइन पे। अगर आप फिल को सेलेक्ट करते हैं तो फिल को सेलेक्ट करने के लिए आप क्लिक करेंगे ऑन द कलर फिल इनसाइड द शेप। अगर आपको शेप को सेलेक्ट करना है उसके साथ साथ उसकी आउटलाइन को भी सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप शेप के अंदर डबल क्लिक करेंगे। अगर आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप या फिर आपको एक ऑब्जेक्ट या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आप अपना माउस ड्रैग करके अपने सिलेक्शन बॉर्डर तक उसको लेकर के जाएंगे। पार्शियल ऑब्जेक्ट के लिए समझ लेते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द सिलेक्शन टूल। स्टेप 2, ड्रैग अ मार्क टू enclose द रिक्वायर्ड पोर्शन इन इट। द enclosed पोर्शन विल बी सेलेक्टेड। इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है। देन आप मार्क करके ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे टू रिक्वायर्ड पोर्शन, मतलब उसको आप ड्रैग करके उतने पोर्शन तक लेके जाएंगे जितना भी पोर्शन आपको रिक्वायर्ड है। You should know when we make a selection by enclosing objects within an imaginary selection box, it is called mark selection. तो जब भी आप enclosing objects को select करते हैं एक imaginary selection box के थ्रू, ये आपका mark selection कहलाता है। Now line tool. The line tool helps us to draw straight lines. When drawing lines, we can choose to specify the stroke, color, size, style and width of the line from the properties panel. The steps to use the line tools are as follows. Step 1, click on the line tool to select it. Step 2, click on the stroke color swatch to see a color palette. Step 3, select a color from the color palette for the line. Step 4, click and drag on the stage to draw a line. Step 5, release the mouse button to finish draw the line. लाइन टूल को समझ लेते हैं। लाइन टूल जो होती है आपको लाइंस ड्रॉ करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब लाइंस को जब आप चूज़ करते हो तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो स्ट्रोक कलर को, साइज को, स्टाइल को और उस लाइन की विड्थ को फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल। तो इनको हम समझ लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, लाइन टूल पे क्लिक करना है टू सेलेक्टेड। उसके बाद आप क्लिक करेंगे स्ट्रोक कलर स्वैच पे ताकि आपको कलर पैलेट जो है वो नज़र आ जाए। देन इसमें से आपको कलर पैलेट में से कलर चूज़ करना है अपनी चॉइस का। फिर आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करके लेके जाएंगे अपनी स्टेज पे और वहाँ पे आप अपनी लाइंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब लाइंस आप वेवी ड्रॉ कर सकते हैं, जिगजैग ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट या स्लांटिंग, जैसे आप चाहें वैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप ड्रॉ करेंगे तो आप अपने माउस को ड्रैग करते हुए नीचे लेके जाएंगे। फिर जहाँ पे आप उसको एंड करेंगे वहाँ अपना माउस आप रिलीज कर देंगे। Curving the line, you can turn a straight line into a curve with a selection tool. Step 1, after drawing a line, click on the selection tool without selecting the line. Step 2, move the pointer on the line. When the pointer changes to arrow with curve symbol, click and drag the line to draw a curve. Release the mouse button, the curve is made. अगर आपको कर्वी लाइन बनानी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी पहले आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद आप उसको बिना सेलेक्ट किए हुए अपने पॉइंटर को ऑन द लाइन मूव करेंगे। आपका जो पॉइंटर है वो इस तरह का सिंबल शो करेगा, एक छोटा सा एरो शो करेगा। इसको फिर आप ड्रैग करके नीचे या ऊपर जैसा भी आपको कर्व बनाना है वैसा कर्व बना के आप उसे रिलीज कर देंगे तो आपका कर्व बन जाएगा। You should know the most common file formats used with the specific file extensions. .fla file extension is used for editable Adobe Flash project, animation, movie, Flash and application. .flv file extension is used for Flash video. .swf file extension is used for Shockwave Flash, animated vector format for the internet. तो यहाँ पे आपको different एक्सटेंशंस बताए गए हैं जो फ्लैश की अलग अलग फाइल को सेव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ पेंसिल टूल, द पेंसिल टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ फ्री फ्रॉम lines in the same way we would use a real pencil to draw any figure on a canvas or paper. The pencil tool has 3 modifiers. First, straighten. This modifier allows us to draw straight lines. Smooth. This modifier allows us to draw smooth curved line. Ink. This modifier allow us to draw freehand lines with no modification applied.
तो यहाँ पे पेंसिल टूल के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आप अपनी ड्राइंग फाइल में अपनी पेंसिल से आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से पेंसिल टूल आपका एनिमेट में भी वर्क करता है। पेंसिल टूल के आपके 3 मॉडिफायर होते हैं। पहला स्ट्रेटन, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। दूसरा स्मूथ, ये मॉडिफायर जो है ये आपको स्मूथ कर्व लाइंस ड्रॉ करने में इस्तेमाल किया जाता है। इंक जो है ये मॉडिफायर आपको फ्री हैंड लाइंस बनाने में हेल्प करता है, जिसमें आपके कोई भी मॉडिफिकेशन अप्लाई नहीं किया जाता। नाउ द स्टेप्स टू यूज़ द पेंसिल टूल्स आर एज फॉलोज। अब हम जान लेते हैं कि पेंसिल टूल को आप यूज़ कैसे करें। तो यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द पेंसिल टूल from the tools panel. Step 2, select stroke color from the colors area of the tools panel. Step 3, select one of the pencil mode modifiers from the options area of the tools panel. Step 4, select stroke size, style or width using the properties panel. Step 5, click and drag on the stage to draw any figure. ठीक है, आप सबसे पहले पेंसिल टूल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद आप स्ट्रोक कलर को चूज़ करेंगे। ठीक है, सपोज आपको ब्लैक नहीं चाहिए, कोई और कलर चाहिए, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप चूज़ करेंगे कंट्रोल, जो आपका पैनल है वहाँ पे आपको टूल पैनल नज़र आ जाएगा, वहाँ पे आप जा करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप सेलेक्ट करेंगे वन ऑफ द पेंसिल मोड मॉडिफायर कि आपको कौन सा मॉडिफायर चाहिए, स्मूथ चाहिए, इंक चाहिए या फिर स्ट्रेट चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे स्ट्रोक साइज़ को, उसके स्टाइल को और उसकी विथ को यूजिंग प्रॉपर्टीज़ पैनल। ठीक है, अगर आपको हार्ड या आपको थिक पेंसिल चाहिए तो उसका साइज़ स्टाइल भी आप चूज़ करेंगे। देन आप जब सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपने ड्राइंग एरिया पे आएंगे और वहाँ पे आप ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। Rectangle and oval tool. You can draw simple shapes like rectangle and oval in Animate and then fill them with a color to use them as part of a drawing. Follow the steps given below. Step 1, click on rectangle tool to select it. Step 2, click on fill color. Step 3, click on no color. You can also click on fill color in the properties inspector and select the no color option. Step 4, click and drag on the stage area to draw your rectangle. Step 5, release the mouse button. The fill and stroke options are similar to line tool and are adjusted the same way. तो जैसे आप अपनी कॉपी में सबसे पहले क्या करते हो, पेंसिल चलाना सीखते हो। जब आप पेंसिल चलाना सीख जाते हो, कर्व बनाना सीख जाते हो, स्ट्रेट लाइन बनाना सीख जाते हो, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, उसके बाद हम शेप्स बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। ठीक है, हम पेंसिल चलाना सीख गए हैं एनिमेट में, अब हम जानेंगे कि ऐसे हम शेप्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करते हुए बताया गया है कि हम कैसे रेक्टेंगल बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करना है। देन आप क्लिक करेंगे ऑन फिल कलर, क्योंकि आपको उसके अंदर अब कलर भी फिल करना है। आप क्लिक करेंगे नो कलर पे, तो इसका मतलब कि आप उसमें कोई भी कलर फिल करना नहीं चाहते। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक एंड ड्रैग करते हुए लेके आएंगे अपने स्टेज एरिया पे, ताकि आप अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकें। अपने माउस को जब आप रिलीज करेंगे तो आपका रेक्टेंगल आपके स्टेज पे ड्रॉ हो जाएगा। नाउ ड्रॉइंग एन ओवल विद फिल्ड कलर्स। Step 1, click on oval tool or press O. Step 2, click on fill color. Step 3, select the color from the swatches. You can also click on the fill color button in the properties inspector and select the color. Step 4, click and drag on the stage area to draw your oval. Release the mouse button. The oval appears अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर स्पेसिफिकेशन। तो पहले हमने रेक्टेंगल सीखा था जिसमें हमने कोई कलर फिल नहीं किया था। यहाँ पे हम जानेंगे कि ओवल कैसे बनाते हैं और उसके अंदर कलर कैसे फिल करते हैं। ओवल टूल पे आप क्लिक करेंगे या फिर आप सिंपली प्रेस करेंगे ओ को। इसके बाद आप फिल कलर पे जाएंगे। ठीक है, कलर आप यहाँ पे चूज़ करेंगे स्वैचेस में से एंड देन आप क्लिक करेंगे ऑन फिल कलर बटन। ठीक है, जो कि आपको प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्टर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप कलर को चूज़ करेंगे, फिर आप ड्रैग करके लेकर के आएंगे, क्लिक एंड ड्रैग करके जब आप अपना जो शेप है उसे ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आप इस पर कलर फिल करेंगे। Polystar tool, you can draw simple shapes like polygon and star in Animate as a part of a drawing. The steps to draw a polygon or a star using the Polystar tool are as follows. Step 1, click on Polystar tool. The fill and stroke options are similar to the line tool and are adjusted to the same way. Step 2, click on the options button under tool settings in the properties panel to display the tool settings dialog box. Step 3, select polygon from the style drop down menu. Step 4, specify the number of sides between 3 to 32. Step 5, click on OK button to close the tool settings dialog box.
Step 6, click and drag on the stage area to draw your polygon shape. The polygon appears according to your desired specification. तो यहाँ पे हम पॉलीस्टार टूल समझ लेते हैं कि इससे आप कैसे पॉलीगन और स्टार बना सकते हैं अपने एनिमेट में। आपको सबसे पहले पॉलीस्टार टूल पे क्लिक करना है, ठीक है। फिल एंड स्ट्रोक ऑप्शन जो है वो सिमिलर होते हैं टू द लाइन टूल, और जो कि सेम वे में, मतलब एक तरीके से ही ये दोनों सिमिलर होते हैं एडजस्ट करने में भी। साथ ही साथ आप क्लिक करेंगे ऑन द ऑप्शंस बटन, जो कि आपको टूल्स सेटिंग्स में नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको टूल सेटिंग बॉक्स जो कि डिस्प्ले होगा, इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है पॉलीगन फ्रॉम द स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू। आपको स्पेसिफाई करना है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। पॉलीगन की साइड्स आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं 3 to 32 के बीच में। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे एंड आपकी जो टूल सेटिंग बॉक्स है वो क्लोज हो जाएगा। देन आप क्लिक करते हुए अपने ड्राइंग एरिया पे आएंगे और यहाँ पे ड्रैग करके आप पॉलीगन शेप बनाएंगे। क्विक टिप्स टू ड्रॉ स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू अंडर टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स। स्टार बनाने के लिए आप स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू में जा करके उसे चूज कर सकते हैं। Now paint bucket tool. You can use the paint bucket tool to paint enclosed areas with 3 types of fills: solid, colors, gradient fill, blend of 2 or more colors, and bitmap fills, picture of images. Let us learn the steps to use this tool. Step 1, select the paint bucket tool or press OK from the tools panel. Step 2, click on the fill color to see the fill colored palette. Step 3, select a color from the fill color palette. You can choose or pick a solid color or a gradient color. Step 4, click inside the shape to fill it with the selected color. पेंट बकेट टूल के बारे में जान लेते हैं। आप पेंट बकेट टूल जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हो ताकि आप इंक्लोज एरिया में पेंट कर सको, ठीक है। ये आप 3 टाइप्स ऑफ फिल्स के साथ कर सकते हो: सॉलिड कलर, जिसके बाद आप ग्रेडियंट फिल्स को भी यूज़ कर सकते हो और आप बिटमैप फिल्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेंट बकेट टूल पे क्लिक करेंगे, या फिर आप के को भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे। देन आप क्या करेंगे, आप फिल कलर को क्लिक करेंगे टू सी द फिल कलर पैलेट। इसके बाद आप कलर चूज़ करेंगे अपनी चॉइस का, ठीक है। कोई भी आप कलर पिक कर सकते हो इसमें से। देन आप क्लिक करेंगे इनसाइड द शेप, तो आपका जो कलर है वो उस सेलेक्टेड शेप के अंदर फिल हो जाएगा। Now brush tool. The brush tool is used to create brush-like strokes while drawing or painting a figure. We can select brush mode, brush size and brush shape modifier from the options area of the tools panel. The steps to use the brush tool are as follows. अब जैसे आप पेंसिल चलाते हो अपने ड्राइंग एरिया में, वैसे हम ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश में आप अपने साइज़ डिटरमाइन कर सकते हो, उसकी शेप वगैरह को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, ब्रश मोड को भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। Step 1, select the brush tool from the tools panel and then select the fill color for the brush. Step 2, in the options area, click on the brush modes arrow and select the normal brush mode from the drop down menu. Step 3, click on the brush size arrow and select a brush size from the drop down menu. Similarly, select a brush shape by clicking on the brush shape arrow in the options area. Step 4, drag the brush on the stage to draw the required figure object. इसके लिए सबसे पहले आप ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द टूल्स पैनल, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे फिल कलर फॉर द ब्रश। उसके बाद आप ऑप्शन एरिया में जाएंगे, देन आप ब्रश मोड को क्लिक करेंगे एंड देन आप सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल ब्रश मोड को। देन आप ब्रश साइज एरो पे क्लिक करेंगे ताकि आप इसके साइज़ को चेंज कर सकें, ठीक है। आपको बड़ा साइज़ चाहिए, आपको छोटा साइज़ चाहिए ब्रश का, तो ये भी आप सर्च करेंगे और उसको क्लिक करेंगे। सिमिलरली आप ब्रश शेप को भी सेलेक्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन द ब्रश शेप एरो, जो कि आपको ऑप्शन एरिया में मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको ब्रश को ड्रैग करते हुए स्टेज पे लेके आना है और अपनी जो भी रिक्वायर्ड फिगर और ऑब्जेक्ट है उसको आपको ड्रॉ करना है। इरेजर टूल के बारे में भी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल है। इरेजर टूल इज यूज टू रिमूव और इरेज जस्ट लाइक अ नॉर्मल इरेजर। व्हेन द इरेजर टूल इज सेलेक्टेड, 3 modifiers icon, eraser mode, focus and eraser shape appears. Eraser shape is used to choose a shape of eraser. Eraser focus is used to erase entire line on fills with a single click.
Eraser mode is used to choose a mode for the eraser. The steps to use the eraser tool are given below. अब जैसे आपका जो नॉर्मल इरेजर जो रबड़ होता है, जब आप पेंसिल से अपनी कॉपी में मिस्टेक करते हो, ड्राइंग बनाते समय, लिखते समय, तो आप इरेजर से उसको मिटाते हो, उसे रब करते हो, फिर आप दोबारा से अपना ड्राइंग कंटिन्यू करते हो। तो उसी तरीके से आप एनिमेट में भी इरेजर टूल को यूज़ करके अपनी जो भी मिस्टेक है उसे आप रिमूव कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। Step 1, click to select the eraser tool. Step 2, click on the eraser mode button and select a required eraser mode from the drop down menu. Step 3, click on the eraser shape button and select a required shape, eraser shape and size. Step 4, drag the eraser tool over the drawing to erase a required part. The eraser in different modes work like as shown below. Use pocket mode to remove stroke, segments or filled regions with a single click on them. तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कैसे आप इरेजर टूल को यूज़ करते हो। आपको सबसे पहले इरेजर टूल पे क्लिक करना है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे इरेजर मोड बटन पे और यहाँ पे इरेजर मोड को आप सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। उसके बाद आप क्लिक करेंगे इरेजर शेप बटन पे और आप इसकी रिक्वायर्ड शेप एंड साइज़ को सेलेक्ट करेंगे। देन आप ड्रैग करते हुए इरेजर को अपने ड्राइंग एरिया पे लेकर के जाएंगे अपनी मिस्टेक्स को मिटाने के लिए। Now you should know to delete everything on the stage, just double click on the eraser tool in the tools panel. If you select erase inside mode and start erasing from an empty point, nothing is erased. अगर आपको हर चीज़ अपने स्टेज से इरेज करनी है, सारी की सारी आपको डिलीट करनी है, हटानी है, तो आपको इरेजर टूल पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है इन द टूल्स पैनल। अगर आपका जो इरेज है किसी भी मोड में है और अगर वो एम्प्टी पॉइंट पे इरेज कर रहा है तो वो कुछ भी इरेज नहीं कर पाएगा। नाउ टेक्स्ट टूल, द टेक्स्ट टूल इज़ यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट ऑन द स्टेज. We can use the text tool to give headings or titles to our graphic or animations. There are two types of text you can add to your drawing: label text and block text. The difference between these two is that when you type text into a label text box, the text does not wrap. The width of the text box keeps expanding as you type characters. With a block text box, you specify a width, and when the text you are typing reaches the end of the block, it wraps to start a new line. तो टेक्स्ट टूल के बारे में जान लेते हैं। टेक्स्ट टूल जो है ये आपके स्टेज पे कुछ भी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज आपको अपनी जो ड्राइंग है उसको आपको हेडिंग देनी है या कुछ भी टॉपिक वहाँ पे लिखना है तो आप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से, जैसे कि आपका लेबल टेक्स्ट है, ब्लॉक टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट को यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट को अपनी जो ड्राइंग है उसके साथ ऐड करते हो। Adding label text box. Step 1, click on text tool or press T from the tools panel. Step 2, move your mouse pointer on the stage and click on it. A text box appears on the stage. Step 3, type the text you want to appear on the stage. A circle in the upper right corner of the text box indicates that it is a text label. To edit the text, double click on the text box. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेबल टेक्स्ट को कैसे हम ऐड करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे या फिर टी को प्रेस करेंगे फ्रॉम द टूल्स पैनल। फिर आप अपने माउस पॉइंटर को स्टेज पर लेकर के आएंगे एंड आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा स्टेज पे। आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप करना है। नाउ ऐड ब्लॉक टेक्स्ट बॉक्स. Step 1, click on text tool or press T. Step 2, move your mouse pointer over the stage, then click and drag from left to right on the stage. A box appears on the stage showing you how wide your text box will be. Step 3, release the mouse. Step 4, type the text you want to appear on the stage. A square in the upper right corner of the text box indicates that it is a block text box. अब हम जान लेते हैं ब्लॉक टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हुए हम टाइपिंग करते हैं। आपको अगेन क्या करना है, क्लिक करना है टेक्स्ट टूल पे या फिर आप टी भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने माउस पॉइंटर को लेकर के जाएंगे स्टेज पे और जब आप क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो आपके सामने एक बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा जिसके अंदर आपको टेक्स्ट जो है वो फिल करना है और ये आपको शो करेगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो कितना वाइड होगा। उसके बाद आप अपने माउस को रिलीज़ कर देंगे, देन आप टाइप करेंगे अपने टेक्स्ट को, ठीक है, जितना भी आप टेक्स्ट अपीयर करवाना चाहते हैं अपने स्टेज पे।
सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड वीडियो। तो आपको एनिमेशन एंड वीडियो के बीच में डिफरेंस बताना है। सम कॉमन कमांड्स, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन कमांड्स विच वी कॉमनली यूज ऑन ऑब्जेक्ट्स। ग्रुप कमांड, व्हेन यू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट द fill and stroke portions are separate. This could cause a problem while transforming or moving the object. Also, a drawing may consist of many objects like circles, squares, lines, etc. It is inconvenient to move them together on the stage because you could unintentionally leave some object out or move it out of the place, which could spoil the whole drawing. Therefore, what we can do is to group the objects so that they behave like a single entity. तो यहाँ पे हम ग्रुप कमांड्स को चलाना सीख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। जब भी आप अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो तो आपका जो फिल एंड स्ट्रोक पोर्शन है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन है या आपका ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ एक जो आपका ड्राइंग हो सकती है उसमें आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सर्कल है, स्क्वायर है, लाइन है, ये कंसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है इनको एक साथ स्टेज पे मूव करना या वहाँ से हटाना, ठीक है। फॉलो द गिवन स्टेप्स बिलो टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। अब यहाँ पे स्टेप आपको दिए गए हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स विच यू वांट टू ग्रुप। स्टेप 2, ओपन द मॉडिफाई मेन्यू एंड क्लिक ऑन द ग्रुप कमांड। द ऑब्जेक्ट्स आर नाउ ग्रुप्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट्स को जिनको आप ग्रुप करना चाहते हैं, मतलब एक ही ग्रुप में आप डालना चाहते हैं। उसके बाद आप ओपन करेंगे मॉडिफाई मेन्यू और आप क्लिक करेंगे ग्रुप कमांड पे, तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्रुप्ड हो जाएंगे। Now break apart command. This command has many uses, but right now we will learn its use in breaking apart the text, which can be done at 2 levels as given on next page. Step 1, you can break apart text to place each character in a separate text box. Step 2, you can break apart each text block to change it to its component, fill and lines. Follow the given steps to break apart a text string. Step 1, use the selection tool to click a text block. Step 2, select, modify, break apart each character in the selected text is placed in a separate text block. You can further break apart the text to change it into its component. पहले हमने जाना था ग्रुप करना, अब हम जानेंगे कमांड्स, ब्रेक कमांड को यूज़ करना। तो ये जो कमांड है इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं, लेकिन हम इसके ब्रेकिंग अपार्ट जो टेक्स्ट है उसके बारे में जानेंगे कि टेक्स्ट को कैसे आप अलग अलग करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट को जो कि आपने एक साथ प्लेस किए हैं इनको आप सेपरेट टेक्स्ट ब्लॉक्स में लगा सकते हैं। आप ब्रेक अपार्ट को यूज़ करके जो आपका टेक्स्ट है उनको आप अपने कंपोनेंट से अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं, कंप्यूटर ये एक ही साथ लिखा गया है। अब आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे मॉडिफाई ब्रेक अपार्ट को। उसके बाद आप देखेंगे जो आपका जो पूरा का पूरा कंप्यूटर है उसका हर एक लेटर जो है वो हर एक ब्लॉक के अंदर लिखा गया है। Critical thinking, Rohan wants to select multiple objects on the screen. How should he do it? तो रोहन को क्या करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा ये आप उसे सजेस्ट करेंगे। Now tricky terms, animate software. It is used to develop interactive graphics and animation which can be used on a website or for any other multimedia purpose. Stage, it is the main work area where you can create the project. Timeline, it is a panel at the bottom of the stage which is divided into layers and frames. Tools panel, it contains all the tools required to create shapes. Library panel, it contains all the objects that are created or imported. A brush tool, you can draw as you do with brush strokes. A line tool, you can draw straight lines using the line tool. Pencil tool, you can draw free from lines and shapes. Rectangle, polystar, it can be used to draw rectangles, squares, polygon and stars. A text tool, it lets you place text blocks on the stage. तो इस चैप्टर में हमने एनिमेट सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, ठीक है, जिसमें आप अपने ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस को क्या करते हो, डेवलप करते हो। इसके स्टेज, टाइमलाइन एंड डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने जाना जो कि हम इसमें ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.